So hello everyone, welcome to Costa Talks. So in the last video, we have make framing plan and center line plan by using this architectural drawing. So this is the 2 BHK house. So if you not watch the last video, so I will put the link in the description so you can go through that video. And then this video is the next step to design and analysis the building by using centerline plan. So in the last video we have converted DWG to DXF centerline plan. So now in this video what we can do, this is basically the framing as well as the centerline plan. Okay, so this green one is the beam, this is column, and this purple or magnetar line, so this line we call as centerline plan. Now let's go to the E tab and import. So now let's go to the E tab and we will import this DWG, sorry, this DXF file in E tab, and then we will model that building. Okay, this is the model in E tab which I have earlier modeled this. So what we can do is we can select all. Okay, Control A, then just delete. Okay, so now come to plan. So this is my elevations. First is ground floor, then terrace, then multi level, which is top of terrace. Then click on ground floor, apply. Okay, now go to file, then click on import, then go to direct DXF file floor plan, and this is my file, DXF file. Just open. So this is the window, the pop will pop up. So now I will choose this center line because this line I have model as center line. So click on center line. Okay, sorry, this is not the way, correct way. फर्स्ट सबसे पहले तो हमको समझना है कि जो भी हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की है ऑटोकैड में, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ बीम. सो बीम के सेटिंग में ही हमको सिलेक्ट करना है. सो नीचे जाएंगे, सेंटर लाइन पे क्लिक करेंगे, देन किसी को भी कुछ नहीं करना है, जस्ट बीम को एज अ सेंटर लाइन ट्रीट करेंगे. देन प्लान लोकेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राउंड फ्लोर. देन और DXF फाइल is in unit, then global Z, that is correct. Okay, so we can give the material property directly from here. So 230 by 530 M20 beam size is there. Okay, so that is okay. Then just click on OK. Okay, now we will rename this file, or just save here, sample project. Just click. Okay, so finally our DXF file is ready and it is imported to E tab. So this is our beam on the ground floor. So we have assigned this beam as 230 by 530 M20 grade concrete. So now we will assign the columns at specific location that we have already placed in this framing plan. So यहाँ पे E टैब में क्या होता है कि हम जब कॉलम प्लेस करते हैं तो ये बीम के सेंटर में प्लेस होता है, तो E टैब में ये कॉलम थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है. सो बिकॉज हम पहले से ही इसेंट्रिसिटी हम लेकर चलते हैं E टैब में, क्योंकि E टैब वैसे ही रन करता है. तो जब भी हम इसके सेंटर में देंगे तभी वो बीम या मतलब कॉलम
पास होता है, अगर आप ई टैब में इस सेंटर में नहीं दोगे या नीचे दोगे तो वो कॉलम फेल होगा, शॉर्ट फेल होगा। सो कभी भी मॉडल करते टाइम ये बीम के सेंटर में कॉलम प्लेस करना है, चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो रहने दो, बट इसके सेंटर में ही मॉडल करना है। मतलब यहाँ पे, यहाँ सेंटर पे, ये जॉइंट पे, ये जॉइंट पे। तो यहाँ पे कुछ ऑफसेट लेके कोई कॉलम नहीं प्लेस करना है, सो सेंटर में ही करना है। सो हम यहाँ पे अभी कॉलम प्लेस चालू कर देते हैं। ओके, सो हम कॉलम ले रहे हैं 230/400 M20। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हमारे कितने कॉलम्स हैं। तो ऊपर के लाइन में कितने हैं, 5 कॉलम्स है। देन एक लाइन छोड़ के सेंटर वाली लाइन पे 4 कॉलम है, और यहाँ पे 4 कॉलम है। ओके, तो टोटल 13 कॉलम्स है अपने। ओके, सो ये रेफरेंस लेंगे और उसके बाद में हम कॉलम सेट करते चलेंगे। सो क्लिक। सो आप यहाँ देख सकते हो कि ये कॉलम हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो हमको चाहिए वर्टिकल कॉलम। क्लिक करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, एंड और यहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम प्लेस करते चलेंगे, बाद में हम चेक करेंगे कि मतलब रोटेशन बिल्डिंग में कितना है, उस हिसाब से फिर हम उसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक बीम हमारा कनेक्ट होने वाला था, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ड्राइंग में दिया है। क्योंकि मैंने ये दूसरी DXA फाइल यूज की है, मतलब सेमी प्लान की है, जो कल बनाई थी वो आई थिंक लोकेशन कहाँ पे चेंज हो गई है। सो यहाँ पे आप एक बीम ड्रॉ कर देंगे। सो अपना बीम था 230/530। क्लिक करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, डन। ओके, फिर कॉलम में जाएंगे। तो आपने अगर ई टैब का इंटरफेस का वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी न्यू कमर्स है या बिगनर्स है तो उनके लिए तो इजी हो जाएगा। वो वीडियो गो थ्रू करो और उसके बाद ही ये वीडियो पे आओ। तो ये हो गया अपना कॉलम का 90 डिग्री है, यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर से यहाँ पे। सो यहाँ पे दो दो पॉइंट दिख रहा है क्योंकि ये लाइन कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ब्रेक हुई है, तो इसके लिए वो दिखा रहा है। तो इसको हम बाद में बताता हूँ मैं कैसे क्या करना है। जॉइंट पे प्लेस करेंगे सारे कॉलम्स। तो डन, हमारे कॉलम्स सारे मॉडल हो चुके हैं। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। सो अभी मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो कॉलम के बीच में जो बीम आने वाला है वो वहां पे कोई ब्रेक नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे भी कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं है। बट यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कनेक्टेड नहीं है। सो इसको भी मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ सारे बीमों को। सिमिलरली इसको भी मैं देखता हूँ कनेक्ट करके, ये भी नहीं है कनेक्टेड। उसके बाद हम कॉलम टू कॉलम डिवाइड करेंगे। ये भी, ये भी है। इसको पहले हम जॉइन फ्रेम करेंगे, देन ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मेरे को ब्रेक करना है, तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा और डिवाइड फ्रेम्स, ब्रेक एट इंटरसेक्शन विद सिलेक्टेड फ्रेम्स एंड जॉइंट्स अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा ब्रेक हो चुका है। सिमिलरली ये भी है, ये भी हो गया है, ये भी है, ये भी हो गया। ओके, डन। तो यहाँ पे ये नहीं है, तो इसको हम पहले ज्वाइन करेंगे। इसको भी चेक करेंगे, ये भी नहीं है। ज्वाइन, उसके बाद
इसको हम डिवाइड करेंगे, अप्लाई, डन। ये भी हो गया है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है तो इसको भी हम पहले ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन, तो ये भी हो गया है, इसको भी ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन, ज्वाइन, ज्वाइन। देखो ये ज्वाइन नहीं है, इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे क्योंकि बाद में फिर वो एरर्स शो करेगा। इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ओके, डन। सो ग्राउंड फ्लोर हो चुका है। सिमिलरली हमारा सेकंड फ्लोर, इसको सेमी बीम्स का फ्रेमिंग है तो इसको भी हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे। सो कॉपी करने के लिए क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है और उसके बाद हम इसको करेंगे रेप्लिकेट। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट ऑप्शन है और यहाँ एडिट में जाके यहाँ पे भी रेप्लिकेट ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आपको इसी एक्सिस पे करना है रेप्लिकेट तो लीनियर, रेडियल मतलब एंगल में कुछ करना है उसमें, फिर मिरर करना है तो, या फिर हम स्टोरी लेवल पे, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे अगर मेरे को टेरेस को भी ये सेम प्लान चाहिए तो मैं टेरेस को क्लिक करूंगा, ममटी पे चाहिए तो ममटी पे, पर ममटी पे हमको नहीं चाहिए। सो टेरेस पे क्लिक करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा, देन ओके करूंगा। ओके, सो आप 3D में देख सकते हो ये ऑलरेडी हो चुका है। और फिर से हम टेरेस पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये मेरी स्टेयरकेस है। तो इस प्लान को मैं ऊपर जाके, मतलब ऊपर मैं इसको रेप्लिकेट करने वाला हूँ ममटी लेवल के लिए, मतलब ऊपर स्टेयरकेस के ऊपर का स्लैब के लिए। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं पहले, ऑल सिलेक्ट करूंगा, बाद में फिर वहां पे मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो इसको हम रेप्लिकेट करेंगे पहले, रेप्लिकेट स्टोरी, इसके बाद फिर अप्लाई, ओके, देन ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पहले डिवाइड करेंगे इसको, अप्लाई। सो जो भी अनवांटेड बीम से उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये अपना फ्रेम हो चुका है, बट ऊपर हम इसको कॉलम प्लेस करना है। तो क्या करेंगे ऊपर में, सो ये वाले तो कॉलम अपने कंटिन्यू चालू होंगे तो उसको वैसे ही रखेंगे, और उसके बाद उसके आगे वाले जो कॉलम है उसको हम छोटे कर देंगे। तो इसको पहले सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, रेप्लिकेट स्टोरी, देन मल्टी लेवल, ओके। तो ऊपर जाएंगे तो ये दो कॉलम आ चुके हैं, फिर से हम दो कॉलम इसमें ऐड कर देंगे, सिमिलरली रखेंगे या फिर छोटे कर देंगे। तो एक काम करेंगे, फिर ये दोनों को भी हम छोटे कर देंगे, बाद में हम देखेंगे अगर फेल हो रहे तो फिर उसकी साइज बढ़ा देंगे। ओके, तो इसको मैं अंडू ही कर देता हूँ। देन हम क्या करेंगे 230 बाय 230 के कॉलम्स यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ओके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम, ओके। तो 3D में देखेंगे अपना प्लान, ओके। सो अपना प्लान हो चुका है करेक्टली, ओके। सो दिस इज द फ्लोटिंग कॉलम, ओके। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्लोटिंग कॉलम आने वाला है वो, तो इसलिए हमने उसको रिड्यूस किया है। सो फ्लोटिंग कॉलम में भी आपको पता होगा या नहीं, बट अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग है। नीचे में बॉटम में बड़े सेक्शंस लेते हैं कॉलम के, बाद में उसको फिर कारपेट एरिया बढ़ाने के लिए उसको रिड्यूस किया जाता है साइज को, तो उसको फ्लोटिंग कॉलम बोलते हैं हम, ओके। सो अब ये हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेयर केस के लिए मैं डायरेक्टली स्लैब डाल दूंगा। सो लोग क्या करते हैं कि जब इसका लोडिंग असाइन करना है स्टेयरकेस लोड का, तो डायरेक्टली ये बीम पे या ये बीम पे डाल देते हैं, बट मैं मोस्टली लोग ये भी कर सकते हैं कि इसमें स्लैब देंगे
स्लैब देने के बाद इसको डायरेक्टली जो लोड है वो स्लैब पे डाल देंगे, तो वो स्लैब उसका लोड दो बीम पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम स्लैब लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, मतलब ये बीम पे नहीं डालेंगे स्लैब, इसको हम बीम के नन लेयर से, मतलब यहाँ पे ऑप्शन रहता है नन, तो उसको हम इस कॉलम के साथ ये ऑफसेट करेंगे बीम को, और उसके बाद मैं बताता हूँ वैसे क्या करना है। तो ये हो चुका है फाइनली, कॉलम हमने प्लेस कर दिए हैं। ओके, देन हमने उसके बाद हम क्या करेंगे कि डिफाइन में लोड असाइन करेंगे, पहले तो लोड पैटर्न्स में जाएंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने लोड डाल दिए है। तो सबसे पहले मैंने डाला है डेड लोड, उसका सिल्क पेड तो 1 ऑलरेडी रहता है। देन लाइव लोड। ओके, सो ये रिडक्शन लाइव लोड है, मतलब अगर आपके स्टोरी या मतलब शेल पे 3 किलो न्यूटन से ज़्यादा लोड रहता है, तो उसके बाद हम एज पर आईएस कोड 0.5 का रिड्यूस करते हैं, अगर वो कम रहा तो 0.25 करते हैं। ओके, सो ये हो गया अर्थक्विक सिस्मिक लोड एज पर आईएस 1893। सिमिलरली इन ई क्यू वाई डायरेक्शन, तो ये मैं ऑलरेडी क्यों पुट किया हूँ, क्योंकि हमारा टाइम बचने वाला है। अगर वो ऑल प्रोसेस में जाना है, पूरे प्रोसेस में जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली इसको अप्लाई किया है। अगर कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसको तो आप देख सकते हो, मतलब डिटेल वे में कर सकते हो। सो ये हो गया अर्थक्वेक, इसके हम मॉडिफाई में क्लिक करेंगे। सो ये एक्स डायरेक्शन में है। देन सिस्मिक जोन 0.16, मतलब ये जोन 2 में है, सॉरी 3 में है, ये 4 में है और ये 5 में है। ओके, सो 0.11624.36, तो अपना 0.16 है। देन सॉइल टाइप मेरा 1 है, इंपॉर्टेंस फैक्टर 1 लिया है मैंने, रिस्पॉन्स रिडक्शन आर वैल्यू इज 5, और ये टाइम पीरियड है, तो ये यूजर डिफाइंड है। हम क्या करेंगे, प्रोग्राम कैलकुलेट क्लिक कर देंगे, मतलब प्रोग्राम कैलकुलेट करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है हम एज पर आई एस कोड, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो ये हो गया अपना IS 1893। सो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि आपको अपना टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे बेयर मूवमेंट, रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग विदाउट एन एनिमेशन, री इनफिल वगैरह सारा, तो आप ये गो थ्रू कर सकते हो। सो ये तो आरसी स्ट्रक्चरल वॉल, मतलब ये शेयर वॉल के लिए हो गया। सो ऑल अदर बिल्डिंग्स में ये है टी ए इक्वल्स टू 0.09 एच रूट डी। सो एच इज द हाइट ऑफ योर टोटल हाइट ऑफ योर बिल्डिंग, एंड डी इज द बेस डायमेंशन। अगर आप एक्स में जा रहे हो तो यहाँ पे एक्स में आएगा, और वाई में जाए तो वाई में आएगा। सो तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो डायरेक्टली हम जाते हैं, और यहाँ पे मैंने किया प्रोग्राम कैलकुलेटेड, तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वो आईएस कोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देगा। सो ओके क्लिक करेंगे। सिमिलरली ई क्यू वाई भी सेम है। सो डब्ल्यू एक्स एन, मतलब ये ये आप ले सकते हो, या फिर मतलब ये हो गया जीरो एक्सिस 90, 0 डिग्री 90 डिग्री, देन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, ऐसा कुछ मतलब एक्सिस में रहेगा। तो आप इसको हम देख सकते हैं, जैसे ये हो गया अपना नंबर ऑफ लोड सेट 1। ओके, देन
तो ये हो गया अपना अर्थक्वेक, ये हो गया विंड लोड। सो विंड लोड पे अपन क्लिक करते हैं। ओके, देन ओके, विंड लोड भी हमने किया है, विंड लोड एक्स, विंड लोड वाई। देन लाइव 50, मतलब अगर 3 किलो न्यूटन से ऊपर है तो लोड 50, मतलब 0.5 का फैक्टर लगता है। देन लाइव लोड रूफ, ये हो गए सारे। सो ये ऑलरेडी मैंने लिए हैं, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग ये लोड्स लगते हैं। सो ऑलरेडी मैंने वो डिफाइन किए, कुछ यहाँ पे लिखे थे, WXN, WXN, WNY, WIN। तो उसको मैंने डिलीट कर दिया है। देन क्लिक करेंगे ओके। ओके, फिर से डिफाइन में जाएंगे। ओके, डिफाइन में जाने के बाद फिर लोड कॉम्बिनेशंस। सो यहाँ पे मैंने 52 लोड कॉम्बिनेशंस डाले हैं। सो 52 में से 26 है जो यूएलएस, मतलब अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग वो 26 आए हैं, और एसएलएस मतलब सर्विसेबिलिटी के 26 ये अपने लोड कॉम्बिनेशन आए हैं। सो एसएलएस मतलब सर्विस लोड, देन ये है अपने 26, और यहाँ से यूएलएस के 26। सो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल वे में डाल दूंगा कि कौन से मैंने कॉम्बिनेशंस लिए हैं। सो आपको अगर लोड कॉम्बिनेशंस अगर डालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू लोड कॉम्बो, उसका नेम डालेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी उसके फैक्टर्स है और उसके स्केल फैक्टर कितने हैं वो लिख देंगे, तो उसके हिसाब से फिर वो ऐड होगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके। फिर से जाएंगे डिफाइन में, डिफाइन में जाने के बाद मास सोर्स। तो मास सोर्स में डेड लोड 1 रहता है, जैसे आपको ऑलरेडी बोला है कि लाइव 25, मतलब अगर आपका शेल पे लोड या अपना फ्लोर पे लोड 3 किलो न्यूटन से कम आता है तो फिर 0.25 का रिडक्शन होता है। अगर आपका लोड 3 किलो न्यूटन से ऊपर है सो 0.5 का रिडक्शन लगता है। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे लाइव लोड को 0.5 से, अगर 3 किलो न्यूटन से कम रहा तो 0.25 से। तो ये ऑलरेडी अपना आईएस कोड में गिवन है। सो क्लिक करेंगे ओके पे। ओके, देन फिर से जाएंगे डिफाइन। ओके, सो ये हो गया अपना लाइव लोड पैटर्न हो गया, उसके बाद लोड केसेस हो गया, कॉम्बिनेशन भी लोड केसेस भी देखेंगे। सो ये है डेड लोड, देन लाइव, EQX, EQY, स्पेक एक्स, मतलब ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। सो ये वहाँ पे यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू केसेस पे। ओके, सो ये यहाँ पे आ गए। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेड लोड, लाइव लोड, EQX, EQY, देन WX, WY, और ये सारे ऑलरेडी हम पहले लोड पैटर्न्स में डाले हैं। तो ये और लोड पैटर्न्स में यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। बट हमको ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, मतलब अब हम लीनियर स्टैटिक मेथड से नहीं जा रहे, हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड से जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करना है कि स्पेक एक्स और स्पेक वाई, यहाँ पे मॉडिफाई क्लिक करेंगे, ये दो कॉम्बिनेशंस डालने हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखा मैंने स्पेक एक्स रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। देन यहाँ पे लोड अप्लाइड, मतलब लोड टाइप कौन सा है अपना, एक्सेलरेशन U1 फंक्शन 1, और इसका हम स्केल फैक्टर लिखेंगे 9808, मतलब ग्रेविटी। पहले तो ग्रेविटी पे हम इसको रन करेंगे। सो ओके क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे ग्रेविटी की 9808। ये 9.80 है, बट हमारा मॉडल में है, सो यहाँ पे हम 9808 क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे ओके पे। ये भी हो गया अपना। जैसे डिफाइन में जाएंगे और कुछ बच रहा है तो चेक करेंगे। पी डेल्टा अपना ऑफ है, लगा सकते हो, लगाना है तो लगा सकते हो, बट पी डेल्टा इनिशियली तो ऑफ ही है क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है। सो डन, यहाँ पे अपना हो चुका है। देन डायफ्राम हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, और फ्लोर्स डालने के बाद, क्योंकि फ्लोर्स पे ही डायफ्राम लगती है। तो पहले क्या करेंगे, ये कॉलम 230 का है। सो यहाँ से ये कॉलम, ये बीम से ऑफसेट करेंगे 115 mm, और इधर से भी हम 115 mm का ऑफसेट कर देंगे।
तो क्लिक करेंगे, ये एक क्विक ट्रिक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नन पे, और यहाँ पे प्लान ऑफसेट mm, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 115 और क्लिक करेंगे, मतलब एंटर कर देंगे। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये नीचे में एक्यूरेट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, स्नैप ऑप्शन, तो ये हेल्प करेगा। ओके, एजेस, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, या सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, अप्लाई। ओके, तो ये हो गया, परपेंडिकुलर अपना आ चुका है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, डन। सिमिलरली इसको भी हम करेंगे। ओके, सो क्या करेंगे, क्या करने वाला हूं मैं कि मैं स्लैब ये पॉइंट से, मतलब ये बीम और ये बीम, ये चारों बीम को कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। और इसको जो लाइन है हमने अभी ड्रॉ की है, उसको फिर बाद में स्लैब ड्रॉ करने के बाद हम डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले जाएंगे स्लैब पे, तो स्लैब पे हम सिलेक्ट करेंगे S125। सो ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन किए हैं स्लैब सेक्शंस वगैरह, क्योंकि अपना टाइम बचे। अगर डिफाइन करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सेक्शन प्रॉपर्टी, फ्रेम सेक्शन। तो यहाँ से हम बीम और कॉलम को सेक्शन दे असाइन कर सकते हैं, कौन सा कॉलम चाहिए, किस साइज का चाहिए। उसके बाद सेक्शन प्रॉपर्टी में फिर से जाएंगे, तो यहाँ पे स्लैब सेक्शन ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी S125, S150, 200 mm के स्लैब ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ये पॉइंट पे, देन ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे, लास्ट में यहाँ पे, और जस्ट हो गया। तो इसको हम ये लाइन को और ये लाइन को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी वो बीम रहता है, बट इसको कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं रहती, तो वो स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है। तो हमने उसको डिलीट भी कर दिया, या रखा तो भी चलेगा, बट डिलीट करना अच्छा रहता है। इसको हम डिलीट कर दिया है। और सिमिलरली ये फ्लोर को हम ऊपर भी शिफ्ट कर देंगे, मतलब कॉपी कर देंगे। रेप्लिकेट में क्लिक करेंगे, स्टोरी, टेरेस, अप्लाई। ओके, तो 3D में देख सकते हो अभी ये अपना हो चुका है, डन। तो ग्राउंड पे हम फ्लोर नहीं डाल रहे, क्योंकि वो सॉइल सेटलमेंट रहती है, मतलब सेटलमेंट नहीं रहती है, कोई रिजिड पेमेंट रहता है, ये रहता है बेस्ट। तो हम कभी भी ई टैब में ग्राउंड पे फ्लोर नहीं डालते, हम डालेंगे अभी डायरेक्ट रूफ पे। तो रूफ पे जाएंगे, हम डायरेक्ट प्लान पे जाएंगे, टेरेस लेवल, अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम ये ऐड कर देंगे फ्लोर। तो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं, तो चलो। तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। तो अगर आपको फास्ट वे में फ्लोर्स ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक किया है, देन सेकेंड पॉइंट पे क्लिक किया। ओके, देन मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा, ज्वाइंट यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे। तो ये बड़ा सेक्शन अपना आ चुका है स्लैब का। बट मुझको बट मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जितने भी फ्रेम है, तो ये एक फ्रेम है, दो और तीन, मतलब 1 2 3 4, चार पार्ट में अपना स्लैब डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे करना है, यहाँ पे ऑप्शन है अपने, डिवाइड शेल, यहाँ पे ज्वाइन, मर्ज सेल, मतलब ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे बीम का हमने देखा था, डिवाइड ज्वाइन, इसको हम करेंगे डिवाइड। और यहाँ पे ऑप्शन आता है फर्स्ट में कुकी कट, कुकी कट। तो ये क्या करता है, फ्रेम्स टू शेल को, शेल के एजेस को डिवाइड करता है। तो इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हो चुका है, यहाँ भी हो गया है, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। तो फिर से इसको मैं सिलेक्ट करूंगा,
इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर कुकी कट करूंगा, तो ये भी सेपरेट अपना हो चुका है। तो यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे, ये हो गया है। ओके, तो सिमिलरली हम उसी तरीके से हम स्लैब यहाँ पे मॉडल करते चलेंगे। डन। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, ये भी हो चुका है। यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डन, सिलेक्ट, अप्लाई, ये हो चुका है अपना, डन। फिर से यहाँ पे भी हम स्लैब क्रिएट करेंगे, डन। इसको हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये सारे कुकी कट, ये कट, मतलब शॉर्टकट ट्रिक्स है, जो एक्सपीरियंस आएगा तब तक आपको क्लियर, वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। तो ये हो चुका है अपना, डन। तो 3D में फिर से जाएंगे, अब बच्चा है अपना ये मल्टी लेवल के ऊपर स्लैब, इसको हम बना देंगे। मल्टी लेवल पे क्लिक करेंगे, ओके, अप्लाई, देन क्लिक करेंगे स्लैब पे, सिलेक्ट, डन। ओके, डन। ये अपना हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो जॉइंट है, मतलब बेस के पॉइंट है, वो फिक्स नहीं है, तो उसको भी हम पहले फिक्स कर देंगे, क्योंकि फिर बाद में भूल ना जाए। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सो कभी भी वन स्टोरी रखना है, अगर आप ऑल स्टोरी रखोगे तो ऑल पॉइंट्स पे वो फिक्स हो जाएगा। सो ये ध्यान में रखना है, पहले वन स्टोरी करना है, बाद में ही इसको फिक्स, अपना फिक्स्ड सपोर्ट देना है। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट का आइकॉन है, ये पिन्ड है, रूलर वगैरह, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिक्स है तो इसको सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, डन। फिर से आप 3D में देख सकते हो, अभी वो ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो भी हमने मॉडल किया है उसको चेक करना है, कुछ एरर है या नहीं, अगर है तो उसको फिर रिजॉल्व करना है। ओके करेंगे। सो लास्ट के दो ऑप्शन को मैंने डी सिलेक्ट करके रन किया है, मतलब चेक करने के लिए ओके किया है। सो ये टाइम लेगा थोड़ा, आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। सो फाइनली मॉडल हैज बीन चेक एंड नो वार्निंग मैसेज वेयर जनरेटेड। सो जो हमने अभी मॉडल किया है वो करेक्ट है और कोई उसमें एरर नहीं है। ओके, तो ये हो गया अपना मॉडल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लोड असाइन करेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे सेकेंडरी बीम है वहाँ पे मूवमेंट रिलीज करेंगे, वो भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ यूएलएस के मॉडिफायर्स लगाएंगे, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे लगाते हैं। नाउ अब हमने यहाँ पे देखा था कि आर्किटेक्चरल प्लान में यहाँ पे पोर्च है, तो रूफ पे यहाँ पे पोर्च आने वाला है, तो उसको हम पोर्च को भी ड्रॉ करेंगे, या उसको बीम, यहाँ पे बीम असाइन करेंगे, मतलब ये बीम से 2 मीटर के ऑफसेट पे 2 मीटर का बीम डालेंगे, और यहाँ से ऐसे यू शेप में कनेक्ट कर देंगे एज ए कैंटिलीवर। तो जाएंगे हम टेरेस फ्लोर पे, अप्लाई, ओके। उसके बाद फिर हम फिर से लेंगे यहाँ पे एक बीम, जो अपना रेगुलर बीम है 230 बाय 530। देन फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑफसेट, तो अपना ऑफसेट है 2 मीटर, मतलब 2000 mm। ओके, सो क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वो अंदर बन रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे,
देन क्लिक ऑन दिस जॉइंट। ओके, सो फिर इसको फिर से क्लिक करेंगे क्योंकि वो ऑफसेट कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक, और फिर से ये जॉइंट से यहाँ तक। सो कंप्लीट। तो यहाँ पे हम एक फ्लोर डाल देंगे 120 mm का, ये जॉइंट से ये जॉइंट एक, और लास्ट में ये। तो ये ऑलमोस्ट अपना हो चुका है। तो 3D में फिर से देखेंगे तो ये अपना हो चुका है। ओके, डन। सो इसके बाद हम लोड असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, अप्लाई, ओके। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक्सटर्नल वॉल। तो एक्सटर्नल वॉल जितने भी आप साइज के ले रहे हो तो उस हिसाब से हम उसको देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं। तो कैलकुलेटर पे अपन देखते। तो अगर मेरी वॉल अगर 200 mm की है, सो 0.2 मीटर, मतलब 200 का 0.2 mm ये होता है, मीटर में होता है कन्वर्ट 200 mm का। तो 0.2 इंटू मेरा ब्रिक का जो डेंसिटी है वो लूंगा मैं 20 इंटू, उसके बाद हम हाइट ले रहे हैं अपना 3 मीटर। सो 3 मीटर में से हम सपोज 500 mm, जैसे हमारा बीम है 230 बाई 530, सो 3 मीटर से 530 mm कट कर देंगे। तो जितना भी बचेगा उसकी वो हाइट होगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज 500 mm का बीम का जो है डेप्थ है। तो टोटल हाइट में से अगर मैं 500 mm कट करता हूँ तो 2.5 इंटू 4, तो मेरा आएगा आंसर 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इतना वेट मतलब हर बीम पे आने वाला है जहाँ पे अपनी वॉल आने वाली है। तो ये वाला मैं लोड डाल देता हूँ सारे स्ट्रक्चर पे, मतलब बीम्स पे, क्योंकि बीम में ही वो लोड ट्रांसफर होने वाला है। तो जल्दी से मैं डाल देता हूँ यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वॉल अपनी आने वाली है। सिलेक्ट करेंगे सारे बीम जो बीम पे मतलब लोड आने वाला है। उसके बाद ये स्टेयर केस के भी वॉल पे आने वाला है, यहाँ पे भी सिमिलरली, यहाँ पे भी, देन यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल नहीं आएंगी। देन यहाँ पे भी आने वाली, यहाँ पे भी। दिस इज ऑल्सो। इसको हम पहले तो जाएंगे असाइन, देन लोड फ्रेम डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे आएंगे डेड, देन ग्रेविटी में, मतलब ग्रेविटी में जाएंगे लोड, और यहाँ पे लिखेंगे 10 किलो न्यूटन। क्लिक ऑन अप्लाई। ओके, सो ये अपना हो गया है अप्लाई। पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये वाले फ्रेम को यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो इसको हम क्लिक करेंगे डिवाइड फ्रेम्स, फिर इंटरसेक्शन विथ सिलेक्टेड फ्रेम्स एंड जॉइंट। ओके, तो ये अपना डिवाइड हो चुका है। तो इसको हम क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे, डन। तो ये अपना ये 10 किलो न्यूटन, ये अभी आपको छोटा दिख रहा होगा। तो इसको हम ग्राफिक प्रेफरेंस में जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम ग्राफिक फॉन्ट, इसको मैं कर दूंगा 8 या 9 कर देंगे। क्लिक करेंगे ओके, ये अपना हो चुका है 10 किलो न्यूटन आ चुका है। उसके बाद फिर से जाएंगे ऊपर टेरेस फ्लोर पे। सो टेरेस फ्लोर पे हम अ, उसका लोड भी कैलकुलेट कर देंगे। अगर मैं यूज कर रहा हूँ 150 mm का ब्रिक वॉल, तो 0.15 इंटू डेंसिटी इंटू उसकी हाइट है अगर 1 मीटर, सो ये टोटल हो गया मेरा 3 किलो न्यूटन। तो
टेरेस पे मेरा आएगा 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे तो वो मम्टी लेवल जा रहा है, ये वाली, तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे, उसके साइड वाले बीम्स पे हम 3 किलो न्यूटन लोड अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे यहाँ पे डन। तो इस पे हम लिखेंगे 3 किलो न्यूटन अप्लाई, और यहाँ पे और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये बीम पे और ये बीम पे, मतलब इसको भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 किलो न्यूटन। देन ये पॉइंट, तो ये पॉइंट को हम पहले डिवाइड करेंगे ये फ्रेम के साथ। देन इसको भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड, क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस डालना है, मुझे डालना है 5 किलो न्यूटन। तो उसके बाद हम क्या, सॉरी 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे अपना लोड है 3, क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। सो पहले बीम सिलेक्ट करेंगे, एब्सोल्यूट 2 किलो न्यूटन, मतलब 2 मीटर, ये हो चुका है अपना, अप्लाई, ओके। तो ये अपना हो चुका है अप्लाई, ओके। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोड्स में जाएंगे, 3 किलो न्यूटन हो चुका है अपना यहाँ पे अप्लाई, ओके। सो डन। उसके बाद हमने सारे लोड्स डाल दिए हैं, यहाँ पे भी हम डाल देंगे 3 किलो न्यूटन, क्लिक ऑन असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड, देन क्लिक ऑन अप्लाई, ओके। तो ये मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टेप्स मिस हो रहे होंगे, बट पूरा मॉडल लेने के लिए फास्ट फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये अपना हो गया है अपना लोड असाइन। अब क्या करेंगे, शेल पे के ऊपर लाइव लोड अप्लाई करेंगे, पहले डेड लोड करेंगे फिर लाइव लोड करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये है अपना स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस पे हम लोड डाल रहे हैं शेल में यूनिफॉर्म। तो शेल पे हम डाल रहे हैं 4 किलो न्यूटन एज अ डेड लोड, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे, ओके कर दिया। सिमिलरली इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे लाइव लोड 25 किलो न्यूटन का, मतलब ये 3। अगर ये 3 से ज्यादा रहा तो हम लाइव लोड 50 ये यूज कर सकते थे, बट ये अपना 3 किलो न्यूटन है। अगर 3 से बड़ा रहता तो फिर लाइव 25, तो 0.50 उसका रिड्यूस होता है टोटल लोड से। ये क्लिक करेंगे, अप्लाई, ओके। तो ये हो चुका है अपना। फिर से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर डेड लोड जाएंगे, डेड लोड पे क्लिक करेंगे, शेल में जाके यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे सिमिलरली वही है, लाइव लोड 3 किलो न्यूटन है। देन सिलेक्ट करेंगे, फिर से डेड लोड अपना आ चुका है 4 किलो न्यूटन, अप्लाई, ओके। तो जो बाकी के जितने भी अपने शेल है उसको हम 1.5 किलो न्यूटन उसका ये देंगे, लाइव लोड देंगे, और डेड लोड उसका देंगे हम 3 किलो न्यूटन। सिलेक्ट करेंगे सारे, ओके, एक्सेप्ट दिस, ओके। तो यहाँ पे हम देंगे 3 किलो न्यूटन, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे भी हम 3 किलो न्यूटन दे ही देते हैं, ओके। देन फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको सारे को, ओके। तो यहाँ पे हम देंगे लाइव लोड 25, और इसको हम देंगे 3 किलो न्यूटन, सॉरी 1.5 किलो न्यूटन। क्लिक ऑन अप्लाई,
ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे हम देंगे इसका वाटर टैंक का लोड, डेड लोड उसमें आएंगे, डेड लोड में आएंगे ये। तो डेड लोड में जाएंगे, डेड लोड में जाएंगे और इसको हम दे रहा हूँ मैं 10 किलो न्यूटन। तो एक एग्जांपल लेके मैं दे रहा हूँ 10 किलो न्यूटन। तो इसको अप्लाई कर देंगे, क्लिक करो ओके। ये अपना हो चुका है सारा लोड असाइन। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम 3D में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको अपना जो सेकेंडरी बीम आते हैं उसको हम रिलीज कर देंगे, मूवमेंट रिलीज। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो जो भी सेकेंडरी बीम से दोनों कॉलम के लिए, कॉलम को कनेक्टेड नहीं है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हो चुका है, जैसे जैसे ये हो चुका है, ये भी है, ये भी है। ठीक है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद जाएंगे हम असाइन, फ्रेम, रिलीज। तो सेकेंडरी बीम को हम रिलीज करते हैं क्योंकि उसका मूवमेंट प्राइमरी बीम पे ना आए, इसलिए। तो इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्लिक करेंगे अप्लाई, वो हमने ये कर दिया है। तो अभी जो भी बीम कनेक्टेड, ये एक बचा, तो इसको भी हम क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो हम दोनों डायरेक्शन की मूवमेंट को हम रिलीज करें, जैसे M22 मूवमेंट और M33 मेजर माइनर मूवमेंट को हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब इसको मूवमेंट को जीरो कर रहे हैं उस पॉइंट पे। तो ये हो चुका है अपना। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे में जो कॉलम के साइड में है वहां पे मूवमेंट रिलीज नहीं करना है, जहाँ पे कॉलम नहीं आते उस साइड पे करना है। तो क्लिक करेंगे अप्लाई। तो ये हो गया है ऊपर, बट हमको ऊपर नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पे, एंड वाले पे अनटिक करके स्टार्ट वाले पे क्लिक करना है। सो ओके, ये हो चुका है अपना। फिर से हम देखेंगे कोई बच रहा है तो ये भी कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड नहीं है उसको हम रिलीज करने वाले हैं। तो कैंटिलीवर को नहीं करना है, बट इंटीरियर बीम्स को करना है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे हमने कवर कर दिए। तो ऊपर जाएंगे फिर से, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला एक बीम, ये बीम, ये वाला बीम, देन ये दिस, ये वाला बीम, ये वाला एक बीम, ये वाला एक बीम। ओके। और ये एक बीम, तो ये कैंटिलीवर है, इसको रिलीज नहीं करना है, बस इसको रिलीज करना है। तो इसको दोनों को रिलीज कर देंगे, स्टार्ट एंड अप्लाई। फिर से इस पे क्लिक करेंगे और इस पे भी हम क्लिक करेंगे। ध्यान देना है फ्लोर को क्लिक नहीं होना चाहिए, बस डन। तो ऑलमोस्ट ये भी हो चुका है अपना, सारे कवर हो चुके हैं। तो उसके ऊपर जाएंगे, तो ये भी ऑलमोस्ट डन है। ओके। सो अपना मूवमेंट हमने रिलीज कर दिए जो भी सेकेंडरी बीम थे। अब क्या करना है हमको, पहले तो सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप में आने के बाद हम बीम्स को सिलेक्ट करेंगे। तो ऑल बीम्स, बीम्स को सिलेक्ट कर देंगे। तो सारे बीम सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर से जाएंगे असाइन पे, फ्रेम, और यहाँ पे है अपना ऑप्शन प्रॉपर्टी मॉडिफायर। तो ये प्रॉपर्टी मॉडिफायर, इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में यूज करेंगे, फिलहाल तो हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो मॉडिफाई मतलब इसको रिड्यूस करने वाले हैं। तो ये अगर मूवमेंट है तो मूवमेंट को रिड्यूस करने वाले हैं 2 2 और 3 3 मूवमेंट पे। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे बीम पे। तो बीम पे अपना आता है 0.35 से रिड्यूस होता है 35%, मतलब 0.35। और हम टॉर्शन उसको रिड्यूस करते हैं 0.1, मतलब 10% टॉर्शन इसको रिड्यूस करते हैं। तो क्लिक करेंगे अप्लाई, ये हो चुका है अपना अप्लाई। अब सिलेक्ट डिसिलेक्ट करेंगे, फिर से हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम, सिलेक्ट, कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कॉलम को हम देंगे 0.7 और ये 0.7, मतलब 70%, और इसको टॉर्शन को 1 कर देंगे। क्लिक ऑन अप्लाई। तो इसको भी हो चुका है अपना, इसको क्लोज करेंगे, इसको फिर से डिसेलेक्ट करेंगे। अब फ्लोर पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फ्लोर पे, फिर से असाइन में जाएंगे, शेल पे जाएंगे। शेल पे जाने के बाद स्टीपनेस मॉडिफायर, तो स्टीपनेस मॉडिफायर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 0.25। कहाँ तक, ये M12 डायरेक्शन तक, मतलब 6 वैल्यूज हम चेंज करेंगे, 0.25,
0.25, इस पे भी लिख देंगे हम 0.25, इस पे भी लिखेंगे 0.25 और इस पे भी लिख देंगे हम 0.25। और ये भी कितने अपने हो गए 5 वैल्यू है, तो यहाँ पे M12 को भी 0.125 कर देंगे। ओके, अप्लाई। सो इतने डिटेल में कोई यूट्यूबर्स यूट्यूब पे अभी वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ कुछ छूट रहे हैं, उसको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के उसको हम कवर करेंगे। सो ये ऑलमोस्ट हो चुका है अपना, हमने सारे फंक्शंस यूज कर लिए हैं मोस्टली। अब क्या करना है, हमने स्ट्रक्चर को चेक भी किया है, वो सेट है। उसके बाद हमने लोड वगैरह असाइन कर दिए है, स्टिफनेस मॉडिफायर लगा दिए है, जहाँ पे सेकेंडरी बीम उसको रिलीज भी कर दिया है, और शेल पे भी लोडिंग हो चुकी है अपनी। अब बचता है अपना डायफ्राम, तो हम डायफ्राम भी उसको असाइन कर देंगे। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे अप्लाई। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे हम डायफ्राम अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे डायफ्राम में, यहाँ पे अपने ऑलरेडी D1 करके डायफ्राम हमने असाइन किया है, डिफाइन किया है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर बाद में हम असाइन, असाइन के बाद यहाँ पे असाइन के बाद हम जाएंगे यहाँ पे शेल में। शेल में जाने के बाद हम जाएंगे डायफ्राम में, उसके बाद हम क्लिक करेंगे D1, क्लिक करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पे अपना डायफ्राम ऐड हो चुका है। तो डायफ्राम लगता है शेल पे, तो हम शेल पे ही उसको ये करेंगे। उसके बाद सॉरी हमने गलती कर दी, फिर से हम जाएंगे बैक, ऑल स्टोरी पे जाएंगे, वन स्टोरी क्लिक करेंगे, बॉटम में जाएंगे। तो इसको वन स्टोरी पे करना है क्योंकि ईच एंड एवरी स्टोरी पे हमको सेपरेटली असाइन करना है। तो अप्लाई करेंगे, फिर से जाएंगे ऊपर, फिर से क्लिक करेंगे अप्लाई, फिर से जाएंगे ऊपर और इसको भी हम कर देंगे अप्लाई। तो ये डायफ्राम मतलब पूरे बिल्डिंग का मास है, वो एक पॉइंट पे उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। तो ये है डायफ्राम का यूज। ओके, सो ये हो चुका है अपना। हम क्लिक करेंगे एनालिसिस पे, क्लिक करेंगे रन एनालिसिस। तो ये अपना मॉडल अब रन होने वाला है। सो रन होने के बाद हम चेक करेंगे कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी शेयर फोर्स डायग्राम, मूवमेंट की डायग्राम देखेंगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। देन उसके बाद हम कंक्रीट डिजाइन करेंगे और चेक करेंगे कोई मेंबर्स फेल हो रहा है तो उसको क्या करना है, कैसे करना है। सो डन, अपना हो चुका है स्ट्रक्चर रन। ये डिफॉर्म शेप से उसके। ओके ओके, सो ये रन होने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पे, देन शो टेबल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जब किया था तो स्टैटिक में था, उसके बाद हमने स्पेक एक्स और स्पेक वाई मतलब रिस्पांस रिडक्शन में फैक्टर्स में 9808 एक वैल्यू डाली थी। तो क्या करेंगे, बेस शेयर जो स्टैटिक में है और जो अपना लीनियर स्टैटिक लीनियर में जो आता है मतलब रिस्पांस स्पेक्ट्रम में, तो उसको हम मैच करेंगे। मतलब अर्थक्विक के लो अर्थक्विक के फैक्टर से स्पेकिक के फैक्टर को, दोनों वैल्यूज को मैच करेंगे। तो सबसे पहले जाना है स्ट्रक्चरल आउटपुट में, उसके बाद हम जाएंगे बेस रिएक्शन पे। तो बेस रिएक्शन होने के बाद टेबल बेस रिएक्शन, उसको हम क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे ओके। ओके, तो ये अपना टेबल आ चुका है EQX और SpecX का। तो ये जो वैल्यू है EQX की, इसके साथ आपको मतलब EQX डिवाइड बाय SpecX, तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम 9808 में मतलब स्पेक एक एक्स में उसमें जाके उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, तो पहले कैलसी निकालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे वैल्यू ये 79.89, 79.8969 डिवाइड बाय दिस नंबर 58.8
4009 तो ये अपना आ चुका है 1.3680। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको एक जगह 1.3680। सो मैंने ये बुक में लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू मतलब EQ y, तो ये y में देखना है, ये x का x में देखना है। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है 112.5931 डिवाइड बाय 58.7401। क्लिक करेंगे। उसके बाद ये मेरा आया 1.9167। ये दो फैक्टर्स है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें डन कर देना है। ओके, देन मॉडल को अपने को अनलॉक करना है। लॉक पे क्लिक करने के बाद वो अनलॉक हो जाएगा। फिर से हम जाएंगे डिफाइन पे। डिफाइन पे जाने के बाद लोड केसेस पे जाएंगे। लोड केसेस पे जाने के बाद रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ओके, सो ये इसका एक विंडो पॉपअप होगा। ओके, तो ये अपने वैल्यू डाली थी 9808। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, शिफ्ट दबा के 8 क्लिक करेंगे तो वो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे 1 पॉइंट जो हमने वैल्यू आई थी EQX डिवाइड बाय स्पेक एक्स की, तो ये होगा अपना स्केल फैक्टर, तो 1.3680। उसके बाद हम एंटर कर देंगे। ओके, सो एक फाइनल एक वैल्यू आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ओके कर देंगे। स्पेक वाई पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई शो केसेस पे क्लिक करेंगे और उसकी जो सेकंड जो वैल्यू आई थी 1.9167, तो 1.9167 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.9167, देन क्लिक ऑन एंटर, क्लिक ओके, देन अगेन क्लिक ओके, रन अगेन दिस मॉडल। तो ये बेसिक स्टेप रहती है। तो हम अभी बेस शेयर दोनों के हम मैच कर रहे हैं, क्योंकि अपना ये मॉडल रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस का मॉडल है, इसलिए अगर वो स्टैटिक करते तो वो ऑलरेडी वो वहां पे ही रुक जाता। सो ये रन हो रहा है, इसको रन होने देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे मॉडल मास पार्टिसिपेशन फैक्टर और उसके मोड्स चेक करेंगे। तो एज पर आईएस कोड तीन जो फर्स्ट 3 मोड रहते हैं वो 65% के अबव आना चाहिए उसका मॉडल मास पार्टिसिपेशन फैक्टर। तो जाएंगे डिस्प्ले पे, शो टेबल पे, या उसको शॉर्टकट ट्रिक है Ctrl+T। देन क्लिक करेंगे यहाँ पे ही, इसको डीसिलेक्ट करेंगे। तो क्लिक करेंगे मॉडल इंफॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है मास रेशो, मॉडल पार्टिसिपेशन मास रेशो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके। तो एक टेबल अभी फिर से पॉपअप होगा। तो ये सारे अपने हमने ऑलरेडी 12 मोड शेप लिए थे। तो एज पर आईएस कोड जो है, तो जो यूएक्स है तो वो हमारा फर्स्ट 3 मोड में 65% चाहिए और लास्ट में उसका क्यूमुलेटिव 90% के अबव रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूएक्स में, तो ये अपना 65 मतलब फर्स्ट मोड में ही अपना अचीव हो चुका है। देन हम जाएंगे यहाँ पे सम ऑफ यूएक्स, तो ये अपना 99% ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। देन यहाँ पे हम जाएंगे आरजेड में, ये है रोटेशन, तो ये अपना रोटेशन, सो ये आरजेड जो वैल्यू है, सो ये जो आरजेड जो वैल्यू है वो अपना जो रोटेशन दिखाता है, तो ये रोटेशन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो रोटेशन हमेशा थर्ड मोड से ही आना चाहिए। यहाँ पे हम आई थिंक 20% तक अलाउ करते हैं, मोस्टली केसेस में नहीं करते बट कर लेते हैं, जो क्रिटिकल है या ऐसा कुछ है तो 20% तक कर लेते हैं। तो आरजेड की वैल्यू हमारी करेक्ट है। देन क्लिक ऑन ओके। तो कोई भी कॉलम को हमको ओरिएंटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो अपना मॉडल पास है। देन उसके बाद हम कंक्रीट डिजाइन पे जाएंगे। तो क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन है अभी सारे,
तो शेयर फोर्स डायग्राम आपको देखना है, तो यहाँ पे शेयर 2 अप्लाई, ये शेयर फ्लोस 2 है, ये शेयर 3 डायग्राम है, देन मूवमेंट एट माइनर एक्सिस, देन मूवमेंट एट मेजर एक्सिस। उसके बाद हम मोड शेप के अकॉर्डिंग उसका एनिमेशन भी देख सकते हैं कि बिल्डिंग कैसे बिहेव करती है। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंक्रीट डिजाइन करने वाले हैं। सो कंक्रीट फ्रेम डिजाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये कंक्रीट फ्रेम डिजाइन स्टार्ट होने वाला है। तो इसके पहले क्या सेटिंग रहती है वो भी मैं बताने वाला हूँ, बट पहले देख लेते हैं शॉर्ट में। तो ये यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ, ये एरो पे कंक्रीट की साइड में, यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई ऑल मेंबर पास, तो ये बताएंगे। सो अपने ऑल मेंबर पास हो चुके हैं। ओके, सो फाइनली हम सक्सेसफुली ये बिल्डिंग को डिजाइन कर चुके हैं, और इसका मेंबर को भी हम, आपको अगर इकोनॉमिकल बनाना है तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और मतलब इटरेशन है वो सारे, आपको नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। तो फिर से हम जाएंगे एग्जिट, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाके भी हम स्टील फ्रेम डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, कंपोजिट बीम, कंपोजिट कॉलम, देन शेयर वॉल, कंक्रीट स्लैब, ये डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे व्यू प्रेफरेंस, तो यहाँ पे चेक करना है अपना IS 456 स्टेप बाय स्टेप, मतलब केसेस डिजाइन हो जाएंगे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा ये भी हो चुका है, और उसके बाद हम इसको अगर स्लैब करना है तो स्लैब भी डिजाइन कर सकते हैं। तो दिस इज द वे टू मॉडल द बिल्ड एनी बिल्डिंग इन द ETAP सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने शॉर्ट में बनाया है, और डिटेल में चाहिए तो हम डिटेल में भी उसको बनाने वाले हैं।